So today what we will be discussing about in this video is the Anglo-French struggle for supremacy in India, the Anglo-French rivalry. And we will look at the three Carnatic wars that took place, and we will also see the reasons why and how British reigned supreme in India, and how after the third Carnatic war the stage was set for the British to reign supreme. इस पर्टिकुलर राइवलरी का बैकग्राउंड क्या है? सी, ब्रिटिश और फ्रेंच दोनों जो है वो इंडिया आए थे फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस, पर इवेंचुअली क्या हुआ कि उनके पॉलिटिकल एम्बिशंस जो हैं वो बढ़ गए एंड दे गॉट ड्रॉन इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया. दोनों का यही था ओवर टाइम कि वो चाहते थे कि वो दोनों का एम यही था इवेंचुअली कि वो अपना जो पॉलिटिकल पावर है वो एस्टैब्लिश कर सके ओवर द रीजन. सो जो एंग्लो फ्रेंच राइवलरी थी इंडिया में, एक्चुअली that was a reflection of the traditional rivalry of England and France जो यूरोप में चल रही थी. So it began. So the Anglo-French rivalry began with the Austrian War of Succession. It began with the Austrian War of Succession and ended with the conclusion of the 7 Years' War. अब after the three Carnatic wars that took place, it was decided once and for all कि जो English है, English were going to become the masters of India and not the French. That was the ultimate result after the three Carnatic wars. Something that we can expect, a kind of question that we can think of here at this point before we get into the actual, before we see look at the three Carnatic wars, एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो इससे आ सकता है. एक क्वेश्चन था इनसाइड सिक्योर में, उसके बारे में एक बार देख लेते हैं. So this is one question in the Inside Secure. एक बार we'll just go through it quickly. कि in the aftermath of the third Carnatic war, the English reigned supreme over India as all their European rivals had been decisively eliminated. Analyze the reasons for the victory of English. So this is a kind of question that this is one model question that we can think of. But this is just asking about कि थर्ड कर्नाटिक वॉर के बाद जब सारे यूरोपियन राइवल्स जो फ्रेंच थे, द लास्ट यूरोपियन राइवल भी एलिमिनेट हो गया, तो इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि व्हाट वाज द रीजन ऑफ द विक्ट्री, कि इंग्लिश क्यों, व्हाई वाज द इंग्लिश सुप्रीम ओवर द अदर पावर्स. So that we can see, but right now, so this is something that we will be able to answer once we have a understanding of the Carnatic wars, and also later on what we'll understand is कि English में ऐसा क्या था, what was it that the English had, what were the strengths that allowed the English to reign supreme. हम देखेंगे जो आज it will be about the Anglo-French rivalry, but the reasons are much similar as to why they were able to reign supreme over the other European powers as well, and the other powers that existed in India. कर्नाटिक वॉर की बात करते हैं. तो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर जो है, इसका अगर हम रीजन देखें तो द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, फर्स्ट ऑफ ऑल जो टाइमलाइन है दैट वाज फ्रॉम 1740 to 48, एंड इसका अगर हम रीजन देखें तो दैट वाज एन एक्सटेंशन ऑफ द एंग्लो फ्रेंच वॉर इन यूरोप. एंग्लो फ्रेंच वॉर इन यूरोप क्या था, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा था यूरोप में, उसी का एक्सटेंशन था. दैट दिस वाज द एक्सटेंशन ऑफ दैट इन इंडिया. इसका इमीडिएट कॉज अगर हम देखें तो देखिए क्या हुआ था कि 1745 में द इंग्लिश नेवी व्हाट दे डिड वाज दे वेंट एंड कैप्चर्ड द फ्रेंच शिप्स एंड थ्रेटेंड द पोजीशन ऑफ पौंडीचेरी. तो शुरुआत में इस टाइम पे फ्रेंच चुपचाप बैठा हुआ था क्योंकि उसको पता था कि उसका जो पोजीशन है वो वीकर है इन इंडिया. बट what English did was they went and provoked French.
क्या किया इंग्लिश वालों ने? इंग्लिश नेवी वेंट एंड कैप्चर्ड द फ्रेंच शिप्स एंड देन दे थ्रेटन्ड द पोजीशन ऑफ पौंडीचेरी. तो इसके रिटेलिएशन में फ्रेंच ने क्या किया? ड्यूप्लेक्स, who was the governor, he said, the French governor, he retaliated and उसके बदले में मद्रास को ऑक्यूपाई कर लिया ड्यूप्लेक्स ने 1746 में. Sorry, this is 1746. Okay, तो इसके बाद हुआ क्या कि मद्रास का कस्टडी वापस पाने के लिए ब्रिटिश वेंट एंड अपील्ड टू द नवाब ऑफ कर्नाटक. उस टाइम पर मद्रास जो था दैट वाज अंडर द कर्नाटक. ठीक है, मद्रास वाज अंडर द कर्नाटक. सो यहाँ पर ही वेंट एंड अपील्ड टू द नवाब ऑफ कर्नाटक एंड उस टाइम पर नवाब ऑफ कर्नाटक वाज अनवरुद्दीन. ठीक है, अब दिस इज आई एम जस्ट टेलिंग यू ताकि हमें एक बैकग्राउंड समझ में आए. व्हेन वी आर राइटिंग वी डोंट हैव टू इलैबोरेट दिस मच. We just have to write the pointers as is given here. अगर पूछ भी रहा है about the Carnatic War, if not asked, we don't have to write. We don't have to elaborate about the Carnatic War. If for reasons are being asked for the victory of British, then we don't have to elaborate this much. But what I'm doing, we are just having an understanding of what the Anglo-French rivalry looked like in India. So it is a kind of revision of the history that we would have studied from Spectrum. So यहाँ पर Battle of Saint Thome हुआ and this was fought between whom? Between the French forces and the Nawab of Carnatic who was Anwaruddin. यहाँ पे हुआ क्या कि एक छोटी सी फ्रेंच आर्मी थी अंडर कैप्टन पैराडाइज और इंडियन आर्मी काफी स्ट्रांग थी और बड़ी भी थी. But this small French army was able to defeat this strong Indian army. Strong in the sense large Indian army. अब result इसका हुआ क्या? Basically यहाँ पर this, even though the French won यहाँ पर, the French won the Battle of Saint Thome. यहाँ पर ये ड्रॉ इसलिए था कि बेसिकली क्या हुआ था कि जो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर है, सी देयर वाज दिस ट्रीटी, द ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन जो चल रहा था पैरेलली वहां पर यूरोप में. सो ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन केम टू अ कंक्लूजन विद दिस पर्टिकुलर ट्रीटी, दैट इज द ट्रीटी ऑफ Aix-la-Chapelle. So with the treaty of Aix-la-Chapelle, this Austrian war of succession came to a conclusion. इस तरह से इनके बीच में भी एक कंसेंसस हो गया एंड यहाँ पे रिजल्ट में ये हुआ कि मद्रास, इंग्लिश को मद्रास वापस मिल गया एंड फ्रेंच हैड सर्टेन टेरिटरीज इन नॉर्थ अमेरिका, वो उनको वापस मिल गया. सो दिस वाज अ काइंड ऑफ सेटलमेंट दैट दे हैड अराइव्ड अपॉन थ्रू द ट्रीटी ऑफ Aix-la-Chapelle. पर्टिकुलर बैटल का, बैटल ऑफ सेंट थोम जो हुआ था या फिर इस पर्टिकुलर कर्नाटिक वॉर से इसका सिग्निफिकेंस क्या है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस? ये जो पर्टिकुलर वॉर था, दिस पर्टिकुलर बैटल वाज एन आई ओपनर फॉर यूरोपियंस इन इंडिया, बिकॉज यहाँ पे ये पता चला यूरोपियंस को कि एक स्मॉल डिसिप्लिन्ड आर्मी काफी होती है टू डिफीट अ मच लार्जर इंडियन आर्मी. हम एक छोटे से ऑर्गेनाइज्ड डिसिप्लिन्ड आर्मी के साथ एक बड़े से इंडियन आर्मी को आराम से हम टैकल कर सकते हैं. सो एक और चीज यहाँ पर ये पता चली कि जो नेवल फोर्स था उसका रोल कितना इंपॉर्टेंट था. इट वॉज इम्पोर्टेंट बिकॉज यहाँ पर क्या हुआ कि द इंग्लिश नेवी had a strong position and then they were able to capture Pondicherry. See, the thing is, यहाँ पर जो नेवल फोर्स था एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट में, उसका रोल भी समझ में आया. दिस ब्रॉट आउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द नेवल फोर्स इन द एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट इन द डेक्कन. Now we look at the second Carnatic War जिसका टाइमलाइन था 1749 से 54. अब ये अगर हम इसमें देखने जाएंगे, if you look at the course of the war, it is going to become very elaborate and it is going to एक बहुत ही लंबी चौड़ी कहानी हो जाएगी. कहने को तो I can tell you or I will rather tell you, but then that is not something that we have to write because that will become very elaborate and it is unnecessary also. But what we will see it and nevertheless we will look at it. अब सीधे
शब्दों में अगर हम कहें कि सेकेंड कर्नाटिक वॉर का इमीडिएट कॉज का कारण क्या था, व्हाट वाज द कॉज ऑफ द सेकेंड कर्नाटिक वॉर, इसका मेजर कॉज यही था कि जो ड्यूप्लेक्स था उसका जो पॉलिटिकल एम्बिशंस, उसके जो पॉलिटिकल एम्बिशंस थे वो काफी ज्यादा बढ़ गए थे. सो दिस वाज ड्यू टू द पॉलिटिकल एम्बिशंस ऑफ ड्यूप्लेक्स, who was the French governor, because he successfully led the forces. First Carnatic War में he was able to successfully lead the forces. अब इसको चाहिए था कि वो अपना पावर जो है वो बढ़ाए, एंड फ्रेंच पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है साउथ इंडिया में, साउथ इंडियन रीजन में किस तरह से बढ़ाए, he was trying to see that, and इसके लिए he tried to conspire, he tried to interfere in the local dynastic disputes ताकि वो इंग्लिश को डिफीट कर सके. डिफीट All right. अब I will tell you the course of the war and the background, but यहाँ पे रिजल्ट ये हुआ इस सेकेंड कर्नाटिक वॉर का कि ब्रिटिश वन एंड देन द ट्रीटी ऑफ पॉन्डिचेरी वाज साइंड. इसके बाद ड्यूप्लेक्स को जो है वापस बुला लिया गया एंड द इंग्लिश एंड फ्रेंच, इसके बाद दे डिसाइडेड कि हम नेटिव प्रिंसेस के क्वारल्स में इन्वॉल्व नहीं होंगे. अब हम देखते हैं, आई विल टेल यू द बैकग्राउंड ऑफ दिस. अब बेसिकली ये जो लोकल पेटी क्वारल्स थे उसके बारे में देखते हैं कि क्या सीन चल रहा था. वेरी ब्रीफली वी विल लुक इनटू इट. सी, इट वाज 1748 व्हेन निजामुल मुल्क असफजा ऑफ हैदराबाद डाइड. ठीक है, निजामुल मुल्क डाइड इन 1748. अब इसके बाद द क्वेश्चन वाज अबाउट हु इज गोइंग टू टेक द थ्रोन नेक्स्ट. So after the death of Nizamul Mulk Asafjah, his son Nasir Jung went up to the throne. So his accession to the throne was opposed by this person Muzaffar Jung, who was the nephew of Nasir Jung. That means he was the grandson of Nizamul Mulk Asafjah. So इसको ये बोल रहा था कि he is not supposed to be the next Nizam. I am supposed to be. The Muzaffar Jung said that the Mughal emperor had appointed him to become the Nawab or the governor of Carnatic. Basically, he wanted to ascend the throne. So there was a conflict, Nasir Jung versus Muzaffar Jung, Hyderabad में. अब कर्नाटिक में क्या सीन चल रहा था? कर्नाटिक was under Anwaruddin. We saw that Anwaruddin was the Nawab of Carnatic, but इस time पर this particular thing was resented by Chanda Sahib. Chanda Sahib was in disagreement. He said that he should become the Nawab. So there was a conflict between Chanda Sahib and Anwaruddin in the Carnatic. अब ये सीन चल रहा था. अब इसमें Duplex saw an opportunity. What did he do? Duplex went and sided, यहाँ पर हैदराबाद में Duplex went and sided मुजफ्फर जंग, एंड कर्नाटिक में ही went and sided चंदा साहिब. So basically इन दोनों को सपोर्ट किया Duplex ने. Duplex supported them and Duplex supported these two people. So Duplex along with Muzaffar Jung and Chanda Sahib went ahead and defeated Anwaruddin, who was the Nawab of Carnatic, in the Battle of Amber. ठीक है, Battle of Amber में Anwaruddin was defeated. This was near Vellore. अब 1951 में Chanda Sahib became the Nawab. It was during that time. So इसके बाद जब Anwaruddin died, Chanda Sahib went ahead and became the Nawab of Carnatic. और चंदा साहिब ने क्या दिया खुश होके? He gave 80 villages to French around Pondicherry. So he gave 80 villages to French around Pondicherry. इस टाइम तक Nasir Jung also died, and then Muzaffar Jung had become the head of Deccan, the Subadar of Deccan. And what Muzaffar Jung did was he gave certain territories to French, including Masulipatam. ठीक है, अब यहाँ पर Duplex kept his best officer busy at Hyderabad, and ताकि फ्रेंच इन्फ्लुएंस जो है वो मेंटेन किया जा सके हैदराबाद के कोर्ट में.
अब यहाँ पर बेसिकली द सिचुएशन कोई खास मुजफ्फर जंग ऑल्सो डाइड इवेंचुअली, हिज सन केम, सलाबत जंग केम, बट दैट वाज नॉट द पॉइंट. अब पॉइंट ये था कि इस टाइम पर चंदा साहिब वॉज द नवाब ऑफ कर्नाटक. इस टाइम पर रॉबर्ट क्लाइव एंटर्ड द पिक्चर. ओके, रॉबर्ट क्लाइव एंटर्ड द पिक्चर एंड व्हाट रॉबर्ट क्लाइव सेड, देखो यहाँ पर चंदा साहिब जब यहाँ पर जब चंदा साहिब वॉज द नवाब ऑफ कर्नाटक, दैट टाइम द कैपिटल was in Arcot. ठीक है, so capital was in Arcot, but Chanda Sahib was staying in Trichinopoli. So Robert Clive was very clever. He suggested that let us go and make a surprise attack. हम जाते हैं और एक surprise attack करते हैं आरकोट के ऊपर. आरकोट के ऊपर सरप्राइज अटैक करेंगे तो चंदा साहिब हैज टू रश from Trichy to Arcot to save his capital. अब with just 210 men, Robert Clive went and attacked the capital, that is Arcot. ठीक है, अब चंदा साहिब जैसे एक्सपेक्ट किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, चंदा साहिब rushed with 4,000 men from Trichy to Arcot to save Arcot. But even after this siege of 53 days, he was not able to do anything. Chanda Sahib was ultimately captured and killed. Okay. So इसका result क्या हुआ? The result was that British emerged victorious, and the treaty that was signed post the Second Carnatic War was the Treaty of Pondicherry. So background we got it, but यहाँ पे what we have to write is not all that. That is like a very elaborate story which we said it in very brief. But फिर भी देखिए, ब्रिटिश यहाँ पर जीत गया एंड द ब्रिटिश वन, एंड बेसिकली इसके बाद ट्रीटी ऑफ पॉन्डिचेरी जो है वो साइन किया गया. इसके बाद जो है फ्रेंच ने व्हाट दे डिड वाज, फ्रेंच का बहुत सारा फाइनेंशियल लॉस हो गया तो उससे वो अनॉय हो गए, उससे वो इरिटेट हो गए और ड्यूप्लेक्स को वापस बुला लिया. इसके बाद एक सबक मिला इन लोगों को कि इंग्लिश एंड फ्रेंच, इसके बाद दे डिसाइडेड कि हम जो है नेटिव प्रिंसेस के क्वारल में इंटरफियर नहीं होंगे. बहुत सारा फालतू का हमारा पैसा खर्चा होता है, टाइम वेस्ट होता है. सो दे डिसाइडेड कि हम इंटरफियर नहीं करेंगे क्वारल्स में ऑफ नेटिव प्रिंसेस. इस पर्टिकुलर सेकेंड कर्नाटिक वॉर का सिग्निफिकेंस क्या था? यहाँ पर सिग्निफिकेंस ये था कि इंडियन अथॉरिटी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है अगर यूरोपियन सक्सेस फॉर यूरोपियन सक्सेस. ठीक है, इन द सेंस ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, ड्यूप्लेक्स हैड द सपोर्ट ऑफ ऑल दोज पीपल, बट स्टिल एट द एंड व्हाट हैड हैपेंड, ब्रिटिश वन. सो यहाँ पर ये पता चल गया कि इंडियन अथॉरिटी का सपोर्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इफ यूरोपियंस वांटेड टू विन. रादर इंडियन अथॉरिटी खुद ही यूरोपियन सपोर्ट पे डिपेंडेंट हो रही थी अपना काम निकलवाने के लिए. सो दैट वाज अ सीन. सो दिस वाज समथिंग दैट दे रियलाइज. सो दिस वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सेकेंड कर्नाटिक वॉर एंड दिस इज द लेसन दैट यूरोपियंस, द ब्रिटिश हैड लर्न्ड. अब यहाँ पर थर्ड कर्नाटिक वॉर की अगर हम बात करें, नेक्स्ट थर्ड कर्नाटिक वॉर को बहुत ब्रीफली देख लेते हैं क्योंकि उसमें उतना कुछ देखने के लिए है नहीं पर्टिकुलरली इतना ज्यादा. सी, थर्ड कर्नाटिक वॉर की अगर हम बात करें तो सिंपल शब्दों में दिस वाज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ द स्ट्रगल दैट वाज टेकिंग प्लेस इन यूरोप. देयर वाज अ 7-year वॉर दैट वाज हैपनिंग इन यूरोप जहां पे फ्रेंच एंड इंग्लिश जो है ऑपोजिट साइड्स पर थे. टाइमलाइन इसका क्या था? 1758 से 63. सो अगर हम कोर्स ऑफ वॉर की बात करें तो 1758 में क्या हुआ कि जो फ्रेंच आर्मी था, एक्चुअली फ्रेंच आर्मी ट्राइड टू प्रोवोक, तो यहाँ पर फ्रेंच आर्मी वाज अंडर काउंट दे लैली. सो व्हाट दे डिड वाज दे वेंट एंड कैप्चर्ड द इंग्लिश फोर्ट. इंग्लिश का फोर्ट था फोर्ट सेंट डेविड, एंड इस फोर्ट को जाकर फ्रेंच ने कैप्चर कर लिया, फोर्ट सेंट डेविड को और विजयनगरम को. अब इस बात को लेके इंग्लिश भड़क गया. अब इंग्लिश व्हाट दे डिड वाज दे बिकेम ऑफेंसिव एंड दे वेंट एंड इन्फ्लिक्टेड हेवी लॉसेस ऑन द फ्रेंच फ्लीट. ठीक है, तो इस तरह से जो है इन लोगों का चल रहा था बैटल. अब यहाँ पर एक डिसाइसिव बैटल हुआ, दैट इज द बैटल ऑफ वैंडी वॉश. द बैटल ऑफ वैंडी वॉश टुक प्लेस 1760 में एंड फाइनल ब्लो दिया फ्रेंच को सर आयर कूट ने in this particular battle,
एंड पूरी तरह से डिफीट कर दिया फ्रेंच आर्मी को, एंड फ्रेंच आर्मी वाज अंडर काउंट दे लाली. अब यहाँ पर दे टुक बिस्सी एज अ प्रिजनर. वी सॉ बिस्सी को पहले हैदराबाद पे स्टेशन किया गया था. सो बिस्सी वाज टेकन अवे एज अ प्रिजनर, एंड दिस इज व्हाट हैपेंड इन द कोर्स ऑफ द वॉर. सो इस पर्टिकुलर थर्ड कर्नाटिक वॉर के बाद द ब्रिटिश वन, एंड ट्रीटी ऑफ पेरिस जो है वो साइन की गई. इसके बाद क्या हुआ कि फ्रेंच the factories of French were restored. So this particular treaty restored the French factories in India. But बावजूद इसके बावजूद French factories इनके पास restore होने के बाद बावजूद इसके कि इनको फैक्ट्रीज वापस मिल गई, जो फ्रेंच पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था वो डिसअपियर हो गया इंडिया में आफ्टर दिस वॉर. सो दिस वाज अ वेरी सिग्निफिकेंट वॉर, बिकॉज इस पर्टिकुलर थर्ड कर्नाटिक वॉर के बाद जो फ्रेंच पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है इंडिया में, दैट डिसअपियर्ड आफ्टर द वॉर. इसके बाद फ्रेंच, इस पर्टिकुलर वॉर के बाद फ्रेंच, जस्ट लाइक पोर्चुगीज एंड डच, फिर उनका जो इंटरेस्ट रह गया था दैट वाज जस्ट कमर्शियल. दे हैड टू कन्फाइन, इट वाज नॉट इंटरेस्ट, दे हैड टू कन्फाइन देमसेल्व्स टू कॉमर्स एंड टू देयर स्मॉल एनक्लेव्स. ब्रिटिश जो है वो बहुत सुप्रीम हो गया. ब्रिटिश बिकेम द सुप्रीम यूरोपियन पावर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. नाउ वी हैव टू सी, सो दैट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द थर्ड कर्नाटिक वॉर. अब हम यहाँ पर ये देखेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, व्हाट वील डिस्कस नेक्स्ट आर द कॉजेज ऑफ फॉर द इंग्लिश सक्सेस एंड द फ्रेंच फेलियर. तो ये जो पॉइंट्स हैं इंग्लिश सक्सेस का, दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर we can also write these as reasons for the victory of the British, not only against French but also against the other European powers. अब था क्या कि देखिए, there was lesser governmental control over British. जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी दैट वाज अ प्राइवेट एंटरप्राइज, और फ्रेंच कंपनी क्या थी? फ्रेंच कंपनी एक स्टेट कंसर्न थी, इन द सेंस दैट ये जो कंपनी थी द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उस पर गवर्नमेंटल कंट्रोल काफी कम था, एंड इसीलिए वो इंस्टेंट डिसीजंस ले सकता था जब एज एंड व्हेन नीडेड विदाउट वेटिंग फॉर द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट, व्हिच मेड इट मच मोर एफिशिएंट. सो दिस इज वन रीजन, lesser governmental control over British. So French company क्या था? French company was, the French company that was there was regulated by the French government. It was controlled by the French government, and उसके जो decisions थे they were restricted, and there were delays in decision making, and they were restricted by the government policies. दूसरा रीजन ये है फॉर द इंग्लिश सक्सेस. अच्छा, एक और चीज यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो मिशनरी जील था, सी मिशनरी जील जो है दैट वाज लेसर कंपेयर इन द ब्रिटिश कंपेयर टू द अदर यूरोपियन पावर्स. ठीक है, तो उनका मिशनरी जील उतना नहीं था, बट दे डिड हैव certain missionary zeal, but it was not as pronounced as in the other European powers. So this is one reason we can say. अब second चीज ये है कि English की navy, the British navy was very very strong. It was superior. The English navy was superior to the French navy. It helped cut off the vital sea link between the French possessions in India and France. तो इनकी जो navy थी वो बहुत ही superior थी. And the third thing is that the English had bigger cities under their control. ठीक है, important cities इनके पास थे. They had important centers. Calcutta, Bombay, Madras, all this was under the British. और French के पास क्या था? French के पास था just Pondicherry. Fourth चीज हम ये कह सकते हैं कि जो British were having stronger funds. उनके पास funds ज्यादा थे. French, see, कभी भी इंग्लिश ने अपने कमर्शियल इंटरेस्ट को नेग्लेक्ट नहीं किया. they did have imperialistic motives, that is true, but they never ever neglected their commercial interests. Or what did the French do? French actually अपने territorial ambitions को ज्यादा importance दे रहा था compared to अपने commercial interests. So उसको ज्यादा French को ज्यादा French was more inclined, the French were more inclined to getting political control, and इस वजह से they spent a lot unnecessarily, बहुत सारे wars में खर्चा हो गया. So they subordinated their commercial interests to territorial ambition, and फिर उनको फिर shortage face करना पड़ा funds का. ब्रिटिश जो है उनके पास हमेशा फंड्स थे, and they had a sound financial condition, and इसकी वजह से
they were able to significantly do well in the wars. अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है, हम कह सकते हैं कि जो इंग्लिश कमांडर्स थे, जो ब्रिटिश कमांडर्स थे, they were much more superior compared to the other commanders. So there was a long list of leaders on the English side, like there we saw Vandy Wash में Sir Eyrecourt, and then there was Robert Clive who was there, then there was Stringer Lawrence and many other abled commanders on the English side, whereas French side where there was only one abled commander that we can think of, that was Dupleix. So ये जो victory, so we can conclude by saying कि जो victory था at Vandy Wash, this left the English East India Company with literally no European rival in India. कोई European rival नहीं बचा था after the Third Carnatic War, after the end of the Third Carnatic War, after the Battle of Vandy Wash. Thus इसके बाद स्टेज सेट था उनके लिए कि अब वो जाके पूरे के पूरे कंट्री पर अपना धावा बोल सकते हैं, अपना रूल जमा सकते हैं. दे were ready to take over the rule of the entire country. Significantly, in the Battle of Vandy Wash, natives served in both the armies as sepoys. So यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि there was no allegiance. See, Indians जो है, Indians did not really care about sticking to the Indian cause. दोनों साइड में नेटिव्स जो हैं they served in the sepoys. तो irrespective of कौन जीत, who was going to win, irrespective of whether the French would have won or the British would have won, it makes us think कि कोई ना कोई यूरोपियन पावर तो इंडिया को कैप्चर करता ही, बिकॉज हमारे खुद के जो लोग थे they were siding the Europeans, they were involved with the Europeans, they were serving the Europeans, so we were bound to be subordinated by the Europeans in one way or the other. And it so happened that the English reigned supreme after this Third Carnatic War, and then they were able to rule over the entire country. So this is about the Anglo-French rivalry in India, and we will end this discussion here. And one question that we can have here is, see, there's one question that we have, it's a mock question. It appeared in the Insights Secure at some point of time. So the question is, the Anglo-French rivalry in India was a part of their global rivalry aiming supremacy. The question asks us, trace the course of their wars in India and also examine the reasons for the French failure and in 250 words. So ये question है, and we have entirely covered this. We have traced the course of the war, we have examined the reasons for the failure of the French or the reasons for the victory of the British. ठीक है, and Anglo-French rivalry in India किस तरह से चला, that we have seen completely. So that is done here, right? So that is about it. So आप इसके बारे में आप लिख सकते हैं. Hope this was helpful. So बाकी का next video में.